So hi, welcome back everyone to our YouTube channel. So today we going to see how to apply for SPPU entrance examination. तो फाइनली हमारा जो वेट है वो ओवर हो चुका है और SPPU के जो एंट्रेंस फॉर्म्स है वो अभी निकल चुके हैं। तो हम आज देखने वाले हैं कि कैंपस कॉमन एंट्रेंस प्लेटफॉर्म जो है जिसे हम CCEP कहते हैं, तो उसके थ्रू आपको फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं SPPU के, SPPU एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, सो व्हाट आर द डेट्स, लास्ट डेट्स, व्हाट आर द फीस, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, व्हाट विल बी द मार्क्स पैटर्न, व्हाट इज देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, वट एवर कोर्सेस you can apply, everything we going to discuss in this video. Whatever information you want to know about the SPPU entrance, so you'll get to know every detailed information in this video. So before moving forward, I'll request you everyone to please subscribe our YouTube channel, because if you subscribe it will get me motivated to make more and more informative educational content for you guys. So please like this video and share with all your friends. Tell them to apply for SPPU where you can get the knowledge. So that's why it is called as the Oxford of India. So let's go to let's move towards our video. So you just have to search CCEP. तो आपको बस CCEP सर्च करना है गूगल पे. जैसे ही आप CCEP सर्च करोगे तो आपको ये campus.unipune.ac.in का ये दिखेगा. तो आपको बस लॉगिन करना है. मैं अभी SPPU के ही वाईफाई पे हूँ, ये आप देख सकते हो यूनिपुणे. एज आई एम अ स्टूडेंट, मैं अभी हॉस्टल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप सबके लिए. तो आपको बस ये काम करना है कि मैं अभी शो पासवर्ड तो नहीं करूँगा. तो आपको अगर अकाउंट SPPU पे तैयार नहीं है तो आपको यहाँ पर जाके रजिस्टर करना है. या आप देख सकते हो मेरा पॉइंटर आपको दिख रहा होगा. सो यू जस्ट हैव टू रजिस्टर हियर. व्हेन यू क्लिक ऑन द रजिस्टर, हियर ऑल्सो देर आर रिसेंट अपडेट्स वेर यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस, लाइक व्हाट विल बी टाइम टेबल ऑफ द entrance exam, what will be all the admission, various courses, what are the dates, what are the fees, all detailed information you will get here also. Okay, so you can download all those PDF files, circulars which are published by SPPU. You can get it here. You don't have to go to Pune University official website. That website is different. For entrance exam, this is the main exam, this is the main website where you have to apply all those things. So यहाँ पर मैं अपना कैप्चा कोड जो है वो डाल देता हूँ. जस्ट अ सेकेंड, फिर से एक बार रिलोड कर लेता हूँ. मे भी कुछ इशू है इस वेबसाइट को, बार बार कुछ इश्यूज आते रहते हैं. नो इश्यूज. सो जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो अभी मैं लॉगिन कर देता हूँ यहाँ पर. I already have downloaded those two PDF documents which I already shared. So अभी हम डैशबोर्ड पे है. डैशबोर्ड पे आपको वही नोटिफिकेशंस, वही जो नोटिफिकेशंस है वो आपको फिर से यहाँ पर डैशबोर्ड पे देखने को मिलेंगे. So those notifications you can access from here also, from your dashboard, once you create your account. This is my student account, so lot of options are there when you take admission, like hostel details, exam form, course information, your means admission details, all the registering for ticketing system. All these options will open after you take admission in SPPU. Before admission you will get only 2-3 options. So this is my different account, so that's why you are going to see lot of multiple options. So after login you have to go to profile section, and in profile section step by step you have to put your all detailed information in the profile section. So by that way lot of certificates will be there. आपको अलग अलग सर्टिफिकेट्स भी आपके अपलोड करने पड़ेंगे. वहाँ पर अपनी टोटल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालनी पड़ेगी, आपके पास्ट एजुकेशनल डिटेल्स, वो सब डालने के बाद आपका वो प्रोफाइल तैयार होगा. आफ्टर क्रिएटिंग योर प्रोफाइल यू हैव टू गो टू द अप्लाई फॉर कोर्स सेक्शन. So in apply for course section you have to select this and then you can apply. So I already pre-downloaded all the documents here, so we will get to see how you have to apply. So this is the official document which is released by Pune University. So here you can see all the details. Savitribai Phule Pune University, here the formerly University of Pune,
सो दिस इज द नोटिफिकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। हम जल्दी जल्दी देख लेंगे कैसा कैसा क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड एडमिशन, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। तो ये जो है इसमें कैंडिडेट शाल बी एडमिटेड टू द अबाउ कोर्सेज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सो जो भी आपका मेरिट होगा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट यू विल गेट एडमिशन इन द SPPU। देयर विल बी नो एनी अदर ऑप्शन लाइक डोनेशन एंड ऑल द अदर थिंग्स। Only on the basis of merit you will get selected in the SPPU entrance examination. So after that we going to see the online examination will be held of 100 marks. So ये जो एग्जाम है ये 100 मार्क्स की होती है। बाद में आपको एक बात ये सारे के सारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो उसमें जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड वो 20 मार्क्स के वो क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाइक आपका सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, वॉट सब्जेक्ट विल बी। सो वो जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे आपको, ओके। और 20 मार्क्स का वो जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस होता है। उसमें निगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है। तो एवरी रॉन्ग आंसर को 1/4 मतलब जो भी 1 मार्क होता है उसके लिए 1/4 आपका मार्क डिडक्ट होगा। अगर आप गलत आंसर दे रहे हैं तो फिर आपका 1/4 मार्क डिडक्ट होगा। ये सब कुछ आपको आपका जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आप देख सकते हो जो भी है वो। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है उसके लिए आपको अपना प्रॉपर प्रिपरेशन करना होगा। सो एडमिशन फॉर वेरियस कोर्सेज लाइक पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट कोर्स, इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज आर देयर। सो डिप्लोमा and PG diploma courses, I'll tell you all the courses, whatever courses you can apply here. So we will discuss all the courses. So finally we have schedule for the conduct of OEE मतलब ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो वी विल गो, PG मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, सो वी विल सी ऑल दोज कोर्सेज। सो कमेंसमेंट, ये जो कमेंसमेंट है ये फॉर्म फिलिंग जो है ये फॉर्म्स निकले हैं 10 तारीख से। सो 10 मई से ये फॉर्म्स फिलिंग होना स्टार्ट हो गया है। सो इट विल द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग विल बी अप टू 10 जून एंड 10 जून के रात को 12 बजे तक आप ये फॉर्म्स फिल कर सकते हो। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, लाइक देयर आर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आर ऑल्सो देयर इन SPPU, विल बी रन बाय SPPU. So post graduate courses are also there. Lot of students feel for post graduate courses. So here the 17th of June is the last date for filling the मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उन्होंने थोड़े 7 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं बिकॉज ड्यू टू डिले इन सम एग्जाम्स, BSc exams, graduation exams, there is delay some, so that's why they gave 7 days extra for postgraduate courses. So 17/6/2023 is the last date for filling the application form for your online entrance examination. So after filling this, जो लास्ट डेट है वो लेट फ़ी जो है, लेट फ़ी के साथ अगर आप कर सकते हो तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए उन्होंने दे रखी है डेट जो है 8 जुलाई। सो 8 जुलाई 2023 तक आप लेट फ़ी पे करके वो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस है वो आप फिल कर सकते हो। सो टेंटेटिव स्केड्यूल जो है वो स्केड्यूल भी SPPU ने दे रखा है। सो फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, सो फ्रॉम 24 जून to 25 June there will be entrance examinations, and for postgraduate courses 22 बड़ा गैप दे रखा है इन्होंने, अच्छा खासा गैप दिया है यहाँ पर। सो 22 जुलाई टू 25 जुलाई, मतलब 25 जुलाई टू 22 और 25 जुलाई के बीच में ये एग्जाम्स आपके कंडक्ट होंगे। मैं एग्जाम्स का टाइम टेबल भी आपको आगे बताने वाला हूँ कैसा होगा क्या होगा। तो एग्जाम है वो 2 आवर्स का ड्यूरेशन है, 2 घंटे की एग्जाम होगी। 100 मार्क्स की जो एंट्रेंस एग्जाम है ये 2 आवर्स की एंट्रेंस एग्जाम होगी, टोटली MCQ बेस्ड। सो कैंडिडेट आपको हॉल टिकट मिलेगा आपका जो भी है, तो आपको ऑनलाइन साइट पे 5 दिन पहले, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के 5 दिन पहले आपको ये आपका हॉल टिकट मिलेगा, और आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको मिल जाएगा। तो आपको वो याद रखना है या फिर वहाँ पर जाके भी आप कर सकते हो। अलग अलग सिटीज़ में अक्रॉस द कंट्री, अलग अलग सिटीज़ में जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको ही सिलेक्ट करना है, जो भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपके सिटी के पास में है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर आकर आप एंट्रेंस दे सकते हो।
सो कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी जो है वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर, कैसे आपको चेक करनी है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, वो सब मैं डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूँ. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. ओके, सो व्हाट विल बी द रिजर्वेशन. सो यहाँ पर रिजर्वेशन की स्कीम भी है. 30% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एज पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रूल्स. सो 30% सीट्स ये रिजर्व होती है फीमेल्स के लिए. एवरी टाइम लड़कियों के लिए हर बार वो सीट्स रिजर्व्ड होती है, हर जगह पर होता है लड़कियों के लिए रिजर्वेशन. डोंट वरी अबाउट इट. सो यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड टू गेट अवे फ्रॉम दिस रिजर्वेशन थिंग. ओके, सो फीस अभी हम देखने वाले हैं. प्रोसेसिंग फीस जो है वो ऑनलाइन मोड है पेमेंट का. तो आपको जो फीस है वो फीस होंगी फॉर कैंडिडेट्स, जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस होंगी 600 रुपीज़. और जो रिजर्व्ड कैटेगरी मतलब OBC, SC, ST, EWS ये जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए फ़ीस है सिर्फ 400 रुपीज़. और ये जो लेट फीस है, लेट की जो मैंने आपको डेट बताई थी, तो फॉर दैट डेट ऑल्सो यू हैव टू पे 750 रुपीज़. एंड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स देर विल बी फी ऑफ 550 रुपीज़. सो देर आर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस फॉर पेइंग दिस फीस लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड एक्सेट्रा. आई गेस देर इज़ वन मोर ऑप्शन लाइक UPI ऑल्सो देर इज़ अवेलेबल. वी पेड बाय यूजिंग UPI पेमेंट ऑल्सो. ओके, सो फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. तो आपको ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो यहाँ पर अवेलेबल है. आपको इस वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. वो बाकी के सारे डिटेल्स तो आप पढ़ लो. मैं ये जो PDF है ये आपको वो वेबसाइट पे मिल जाएंगी. इफ़ यू नॉट गेटिंग इट, आई विल शेयर द लिंक विथ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो. सो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये इतना कुछ नहीं है. मेरिट लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है एडमिशन पे. तो आपको बस ये करना है कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा. एडमिशन के बाद आपको कॉल वगैरह आएगा डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, वो फाइनली सब को हो जाएगा. तो ये डेप्यूटी रजिस्टर्ड जो है उनका ये फाइनल सिग्नेचर है यहाँ पर. आफ्टर दैट द टाइम टेबल. व्हाट विल बी द टाइम टेबल ऑफ दिस एग्जामिनेशन. सो टाइम टेबल भी ईजी है, आप देख सकते हो यहाँ पर. सैटरडे 24 जून जो है, 24 जून को कैसा एग्जाम टाइम टेबल होने वाला है वो अलग अलग उन्होंने डेट्स दे के रखी है. सो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ये डेट है. इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो है, अलग अलग कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उन कोर्सेज के लिए जो डेट है और वो टाइम है उन्होंने स्पेसिफिक टाइम दिया है, उसी टाइम में वो एग्जामिनेशन हेल्ड की जाएगी. ओके, सो ये अलग अलग कोर्सेज है. स्किल डेवलपमेंट सेंटर में अलग अलग कोर्सेज रन किए जाते हैं, तो उनकी ये टाइम टेबल है. सो आफ्टर दैट ऑन 22 to 24 जुलाई जो एग्ज़ाम होने वाली है, सो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, ये अलग अलग उनके कोर्सेज हैं जो वो अलग अलग कोर्सेज रन करते हैं. तो वो जो कोर्सेज है उनका टाइम टेबल है. आप ये PDF भी आप एक्सेस कर सकते हो. आपके कोर्स के हिसाब से आपको ये टाइम टेबल मिल जाएगा. एंड वन मोर थिंग, ये टाइम टेबल चेंज भी हो सकता है. ये टाइम टेबल इतना ये नहीं है, ये चेंज हो सकता है ये टाइम टेबल. ओके, सो दिस इज द टाइम टेबल. लाइक डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के ये टाइम टेबल है आपके पास. ओके, सो लेट्स गो बैक टू आवर CCEP portal. Here I am going to show you how to apply for this entrance examination. So you have to means मैंने आपको पहले भी बताया था, after registering you will get to see and आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगा. आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रोफाइल फिलिंग एंड ऑल डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सेशन, देन यू गो फॉर अप्लाई फॉर कोर्स. अप्लाई फॉर कोर्स पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा. फिर सिलेक्ट फैकल्टी. आपका जो भी फैकल्टी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, आपको जिस फैकल्टी में एडमिशन लेना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. तो अभी समझो अगर मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिलेक्ट किया, एंड वी कैन सी लॉट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ दर ऑप्शंस आर देयर. लाइक MPSC एंड UPSC का टीचिंग भी यहाँ पर होता है. अगर आप ऑल में जाएंगे और MPSC UPSC का देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेंटर जो है, सो MPSC और UPSC के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर स्पेशल कोचिंग प्रोग्राम रन किया जाता है. तो ये कोचिंग प्रोग्राम को भी आप अप्लाई कर सकते हो. तो अभी हम नॉर्मली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक कोई डिपार्टमेंट, लेट्स से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं. सो लेट्स व्यू इन्फॉर्मेशन एंड अप्लाई इस बटन you have to apply. So you will get all course details. The course duration is 2 years. This is 2 years course duration. So this is postgraduate course, Department of Chemistry, then Science and Technology. So you have to fill this eligibility criteria. Like
ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस कोर्स को। सो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लाइक आपका बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, और आपका जो है वो ब्लेंडेड स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री होगा तो भी चलेगा, या फिर बीएससी बायो केमिस्ट्री होगा तो भी चलेगा, या अलग अलग उन्होंने दे के रखा है। तो स्पेशलाइजेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अलग अलग है आपके आपके अकॉर्डिंग। सो अप्लाई पे क्लिक करना है आपको। अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये साइट लोड हो जाएगी। मेक श्योर टू लाइक अवर वीडियो, हाँ प्लीज़ लाइक यार, प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को। ओके तो एक्चुअली मेरा तो एलिजिबिलिटी नहीं है इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए। सो अब आपका अगर एलिजिबिलिटी नहीं होगा तो यू विल गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशन हियर योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन डज नॉट मैच द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द चूजन कोर्स, सो प्लीज check the course eligibility below. Okay, so here you can check the course eligibility. So department of chemistry we have here like course eligibility क्या है वो इन्होंने यहाँ पर दे के रखी है। so ये course eligibility है। मैं अभी मेरे पर्सनल डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नीचे जाने के बाद ओके सो यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपका जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड आपका सब सेशन पूरा कंप्लीट हो गया तो आपको ऐसे दो ऑप्शंस दिखेंगे, चूज योर एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको चूज़ करना है। लाइक जो भी होगा आपका अहमदाबाद, दिल्ली वगैरह सारे पूरे देश के सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स उन्होंने देके रखे हैं, वो सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स पे आप जाकर एग्ज़ाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली ये एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करता हूँ, सो आफ्टर दैट यू हैव टू चूज़ योर स्पेसिफिकेशन, लाइक यू हैव टू टेक फॉर एडमिशन इन बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री। दोज आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। ये जो आपका ऑप्शन है समझ लीजिए, अगर मैं इनऑर्गेनिक सिलेक्ट करता हूँ, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी है वो आपको फाइनलाइजेशन हो जाएगा और फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। आपको सारे के सारे आपके डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे यहाँ पर। ओके सो ये रही आपकी सारी की सारी डिटेल्स रिगार्डिंग SPPU एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके कुछ भी डाउट्स हो, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम ID है yash-r-raut, वहाँ पर आप जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। ये SPPU में बहुत ज़्यादा भाई प्रोजेक्ट सबमिशन, असाइनमेंट सबमिशन, एग्ज़ाम्स, कंटिन्यूस एग्ज़ाम्स वगैरह आते रहते हैं। एग्ज़ाम्स का टफनेस बहुत ज़्यादा है, रात भर पढ़ो तो भी एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते। तो ये सब है, बहुत टफ होता है SPPU का एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, सिलेबस वगैरह सब बताऊँगा अगली वीडियोज़ में। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अपने मल्टीपल दोस्तों तक ये वीडियो प्लीज़ पहुँचाइएगा। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।